معزز و موقر علماء کرام، محترم سامعین باتمکین، پردہ میں بیٹھی خواتین امت، سوغات سلام کے ساتھ اپنے اس خادم حقیر فقیر بندے بے توقیر ناچیز مجاہد حسنین حبیبی پھلوریا سیتامڑھی بہار کو قبول کیجیے اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، شہر کرناٹک بڑا نام سنا کرتا تھا، ملک ہندوستان کے ہر صوبے میں گیا، لیکن شاید کرناٹک پہنچنے میں بہت دیر کر دیا۔ پورے راستہ اپنے دل کو کوستا آیا۔ مجاہد حسنین حبیبی تو بڑے بڑے غزل کے مشاعروں کی نظامت کرتا ہے، جلسوں کی نظامت کرتا ہے، نعتیہ مشاعرے کی نظامت کرتا ہے، لیکن تیرے قدم اب تک کرناٹک پہ کیوں نہیں گئے؟ دل سے ایک سنجیدگی سی آواز آتی ہے، بڑی شانتی کے ساتھ تسلی بخش آواز آتی ہے کہ آدمی بلندی پہ دیر پہ پہنچتا ہے۔ تو شاید میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں، میں آپ سب کے مشفق، ہم سب کے مشفق، کرم فرما مربی، اتالیق، اردو کی ایک آن ایک شان، ہم شاعروں کی پہچان جناب حضرت مولانا اشفاق صدیقی صاحب، جو آپ کے اردو اکیڈمی کے رکن میں سے ہے۔ میں ان کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں میرے دوستوں کہ اگر یہ چاہتے تو غزل کے بھی مشاعرے کرا سکتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ غزل کے مشاعرے کی ترتیب ہٹا کر نعتیہ مشاعرہ کیوں کروایا، تو انہوں نے بتایا کہ مجاہد حبیبی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان کے موبائلوں کے اندر جہاں گانے نظر آتے ہیں، فحاشی چیزیں نظر آتی ہے، وہ ہمارے نوجوان نعت رسول سننے کے عادی ہو جائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے۔ بس ایک مشن لے کر انہوں نے چلے اور یہاں تک کا انہوں نے سفر کیا۔ میرے دوستوں، اشفاق صدیقوں کو ہر شاعر جانتا ہے، ملک ہندوستان کا ہر شاعر جانتا ہے۔ اگر ہم سیتامڑھی بہار سے یہاں تک نہیں آتے تو یقین جانیے کہ رسائی کی پہنچ اتنی ہے کہ میرے گھر پہ جا کے یہ لال جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ اتنی صلاحیت ہے، ڈر سے کون نہیں آئے گا؟ میرے جیسا آدمی، معذور آدمی، یقین جانیے 42 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں آیا۔ دن چھوٹا پڑ رہا تھا، مایوس ہو گیا تھا، لیکن میں نے آپ کی سماعتوں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کرام کو جب دیکھا تو میرے دوستوں میرا سینہ 36 نہیں بلکہ 46 انچ کا ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دل سے صرف ایک آواز آئی کہ رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے۔ تو میرے دوستو، یہ تمام انشاءاللہ یہ تمام سفر کی صحبتوں کو میں بھول چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کی سماعتیں اچھی ہے۔ آئیے میرے دوستو، ہماری فہرست میں بڑی طویل فہرست ہے شعراء اسلام کی۔ یقین جانیے نعت رسول کا سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سوچنا بھی عبادت ہے، مچل کر داد دینا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر واہ واہ کرتے رہے، ہائے ہائے کرتے رہے، میرا دعویٰ ہے میرے دوستو کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں لکھی جائے گی۔ اگر عشق رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، آپ نے مچل کے سبحان اللہ الحمدللہ درود پاک کا نذرانہ پڑھ دیا، دعوی حبیبی ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائے گی اور آپ ثواب کے مستحق بھی ہوں گے۔ میرے دوستوں، یہ نعت رسول کو سنیں۔ اساتذہ کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے سینئر اور جونیئر تمام شاعروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، یہاں نعت رسول کی محفل ہے، یہاں نہ کوئی بریلویت چلے گی، نہ دیوبندیت چلے گی، نہ سلفیت چلے گی، بات چلے گی تو صرف ایک انسانیت کی بات چلے گی۔ اور میرے دوستوں، آپ کو نعت رسول سننا ہے تو نہ بریلی بن کے سننا ہے، نہ دیوبندی بن کے سننا ہے، نہ سلفی بن کے سننا ہے، بلکہ سننا ہے میرے دوستوں تو آپ کو محمدی بن کے سننا ہے۔ اب ایک شعر کر دیتا ہوں کہ نعت کہنے کو قرینہ چاہیے، نعت کہنے کو قرینہ چاہیے، الفتوں کا ایک خزینہ چاہیے، شاہ طیبہ کی ثنا کے واسطے دل میں پہلے ایک مدینہ چاہیے۔ میرے دوستو، اب آئیے، میں چاہتا ہوں کہ مشاعرہ یہی سے اٹھے۔ انشاءاللہ یہ 2 منٹ کی گفتگو، چند منٹ کی ملاقاتیں انشاءاللہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور میرا آپ ساتھ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں،
प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तब मजा देता है। मुजाहिद हसनैन हबीबी तन्हा नहीं बोलेगा, आप भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप घबराइए मत, मेरे पास इतना मटेरियल है, इतने हाई पावर का इंजेक्शन लेके आया हूँ कि इंशाअल्लाह मैं लगा के जाऊंगा, मुद्दतों मुझे याद रखेंगे। और बाकी शायर इस्लाम एक से एक तरन्नुम के शहंशाह, एक से एक साहिब कलम यहाँ बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों। जैसा कि बताया हमारे अशफाक सिद्दीकी साहब ने, इनके रफ़क़ाओं ने, मेरे दोस्तों के हमारे बीच में एक उस्ताद शायर दरमियान है जिसे फरहान दिल कहते हैं। फरहान दिल मुल्क हिंदुस्तान का वो चमकता सितारा है कि कितने ऐसे शायर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है जो इनसे शायरी की खैरात मांगकर अपनी शोहरतों को पेट को पालते हैं। मेरे दोस्तों इसी तरह से कई असातिज़े किराम बैठे हुए हैं। एक नाम असद बस्तवी का है। हमारे दो हयात यहाँ मौजूद है इंशाअल्लाह। एक दुनियावी जिंदगी है, एक उखरवी जिंदगी है इंशाअल्लाह। ये दो हयात मौजूद है, ममात की कमी है ये, लेकिन इंशाअल्लाह ये तमाम हज़रात है। और शमशेर जहाना गजवी को भी आपने समाप्त किया इंशाअल्लाह। सुहैल आज़ाद मालेगांव भी बैठे हुए हैं और दीगर असातिज़े किराम हमारे अजीज़ुद्दीन अजीज़ साहब जो साहिब कलम उस्ताद शायर हम सब के मुशफिक करम फरमा, जिनके जूतियों में बैठकर शायरी पढ़ने का सलीका मालूम होता है। मेरे दोस्तों रदीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, इनके बैठने के बाद, यहाँ के नीचे बैठने के बाद ये तरीका आ जाया करता है। मैं 2 मिनट से 3 मिनट की गुफ्तगू करूंगा आपसे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि हर आशिक़े रसूल यहाँ पे बैठा हुआ, हर आशिक़े रसूल जिनके सीने के अंदर एक भी चिंगारी अगर इश्क़े रसूल की जल रही है तो इंशाअल्लाह जब मेरे जुमले आप सुनेंगे नबी की शान में तो वो शोले में तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप मेरा साथ देंगे। कितने हज़रात हैं जो हाथ उठा के बताए जो बिल्कुल मेरा साथ नहीं देंगे? ये देखिए इतने हज़रात नहीं देंगे। जो हज़रात देंगे वो दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। एक मरतबा और बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिन्होंने नबी के हाथ पे दोनों हाथों को लहरा दिया इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन्होंने नबी के हाथ, नबी के नाम पर दोनों हाथों को फिजा में लहराया सुभान अल्लाह का, इन सब के हाथों में लकवा नहीं दीजिएगा, कोई बीमारी नहीं दीजिएगा। और जिन्होंने सुस्ती और काहिली से नहीं उठाया है उनके लिए इंशाअल्लाह अशफाक साहब फिर कभी बुलाएंगे तो दुआ करूंगा, अभी नहीं करूंगा, उसको पेंडिंग में रखता हूँ, बिल्कुल इंशाअल्लाह कन्फर्म नहीं करता हूँ। अब आइए मेरे दोस्तों चंद जुमले में पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसे सुनेंगे तो आप मचलेंगे। असातिज़े किराम की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे हाथ जब उस तसल्सल के दरमियान यूं उठ जाए तो समझ जाइएगा कि मुजाहिद हबीबी को नोट नहीं, आपके होठ की जरूरत है, सुभान अल्लाह के वोट की जरूरत है मुझे। इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे मेरे दोस्तों। शायरों की सबसे बड़ी खुराक ये है, मैं रॉलिंग में चल रहा हूँ, मेरा मोबाइल 0 बैलेंस पे है। इंशाअल्लाह आपसे बात करने के लिए इसमें बैलेंस का होना जरूरी है और मेरा बैलेंस ये है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब तक कहते रहेंगे इंशाअल्लाह मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। जहां आप बोलना छोड़ देंगे वहीं से मेरा मोबाइल ठप पड़ जाएगा, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। आइए मेरे दोस्तों हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक मैं नबी की शान में पढ़ता हूँ। तमाम असातिज़े किराम बैठे हैं इंशाअल्लाह हो जाए, इंशाअल्लाह मचल कर एक शेर हो जाएगा उन लोगों से और मुझे उम्मीद है कि यही से मुशायरा उठेगा और बादशाह सागर तक मैं पहुंचने की जसारत करूंगा। हमारे फहरिस्त का सबसे पहला शायर और इंशाअल्लाह मेरी निगाहें वहां पे जाके टिकी है। मुझे कुछ उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तब जाके मैंने उनका सहारा लिया है। आइए मेरे दोस्तों हजरत आमिना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में जन्म लिया है पलने लगा है, मैं मदीने की गलियों में चलती हूँ, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमिना ये फरमाती है मैं जिस रास्ते से निकलती हूँ शजरो हजब मुझे सलामी पेश करते हैं। हजरत आमिना ये भी कहती है कि जब मैं अपने सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछलकर मेरा इस्तकबाल करता नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी तू इतना कीमती इत्र कहाँ से लगाई है, तेरा बदन महकता क्यों है? हजरत आमिना कहती है कि अब्बा हुजूर मेरे बदन का महकना तो दूर की बात, मेरे बदन का लहकना तो दूर की बात, हसन तो ये है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जहाँ थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। मेरे दोस्तों अल्लाह ने जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा किया तो सर से लेकर पांव तक खूबियां ही खूबियां डाल दी, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डाल दी। मैं आपको बताता चलूं कुरान के अंदर अंदाज देखे, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में नबी को साबित बना दिया, अल्लाह ने जिब लिखा कुरान में नबी को जलील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में
दाई बना दिया, अल्लाह ने ज़ात लिखा कुरान में, नबी को ज़ाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को ज़ाहिद बना दिया, अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने ज़ाद लिखा कुरान में, नबी को ज़ामिन बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया, अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को ज़फर बना दिया, अल्लाह ने आइन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने क़ैल लिखा कुरान में, नबी को कुजूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नज़ीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को बाइस बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया, अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान है। मेरे दोस्तों, एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मेरे दुनिया की जितनी दरख्तें हैं उनका कलम बनाया जाए, दुनिया की जितनी समंदरें हैं उनकी स्याही बनाई जाए, और जितने मुअर्रिख बैठे हैं, मुअद्दब लोग बैठे हैं, शायर बैठे हैं, ये सब बैठकर अपने तसव्वुरात की दुनिया में खो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे आका के चेहरे अनवर तो दूर की बात, उनके जूते की तारीफ नहीं लिख सकते। एक शेर पढ़ लो, बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि शेर कर्नाटक में मैं पढ़ रहा हूँ, 42 घंटे का सफर मेरा उसूल हो जाए, और इंशाअल्लाह जब मैं यहाँ से जाऊँ मोहतरमा मुझसे कहे कि बेटा वहां से लेकर क्या आए हो, तो इंशाअल्लाह ये दामन उनके सामने फैला दूं ताकि लगे कि इतनी दुआएं मेरा बेटा लेके आया है, और सीने के अंदर वो दम है इनके, इंशाअल्लाह वो ताकत है इसने रसूल के हवाले से कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चीखता और चिल्लाता नजर आऊं। मेरे दोस्तों, हवाले इस्तेमाल कर ले एक शेर का, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, बिलखुसूस फरहान दिल साहब की तवज्जो चाहता हूँ, चूंकि एक उस्ताद शायर है, साहिब कलम है, तमाम असातिज़ा किराम की तवज्जो चाहता हूँ। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। अरे आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बादशाह सागर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। डॉक्टर नवाज देवबंदी के इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल के अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख।